Namaste everyone. Happy Women's Day 2021. All women have the power to create, nurture and transform. India celebrates Sarojini Naidu's birthday as National Women's Day every year on 13 February. Sarojini Naidu is famous all over the world for her literary contribution. The purpose behind celebrating Women's Day is to promote peace with women's rights. While every day is a Women's Day, but 13 February is celebrated as National Women's Day of India and 8th March is as International Women's Day to honor all the women and their social, economic, cultural and political achievements. Something about Sarojini Naidu. Sarojini Naidu was a celebrated poet, playwright and Indian independence activist. She was the first woman to become president of the Indian National Congress and the first woman to achieve the post of governor of Uttar Pradesh state. She was a follower of Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi named her Nightingale of India or Bharat Kokila because of color, imagery and lyrical quality of her poetry. Her poetry was themed on children's poem, patriotism, romance and tragedy. Between 1915 and 1918, Naidu traveled to different regions in India, delivered many lectures on various topics like social welfare, emancipation of women, and nationalism. She also helped to establish the Women's Indian Association in 1917. She was associated with Annie Besant too. The first collection of poems of Sarojini Naidu was The Golden Threshold, published by Good Press. Song of a Dream by Sarojini Naidu. Once in the dream of a night I stood, lone in the light of a magical wood. Soul deep in visions that poppy-like sprang, and spirits of truth were the birds that sang, and spirits of love were the stars that glowed, and spirits of peace were the streams that flowed in that magical wood in the land of sleep. Lone in the light of that magical grove, I felt the stars of the spirits of love gather and gleam round my delicate youth, and I heard the song of the spirits of truth. To quench my longing, I bent me low by the streams of the spirits of peace that flow in that magical wood in the land of sleep. As I already mentioned in my Karwa Chauth YouTube video that men and women are complementary. Men and women are both important, but in our society or country, females has struggled a lot for achieving position, respect and honor. Today's time, females are in every field and playing a crucial role. They are more capable of doing things in better way than males. A house without female is incomplete. Life never stops without anyone, but it affects a lot others' life. Just think, if mother has expired at early stage of children or divorce occur, then what will be the condition of husband, wife and children? Usually no one ready to sacrifice their happiness and pleasure and to live alone. Everyone look for other options. It is not a matter of husband and wife. Very few people wait for others. They join immediately others. If there is some problem between friends and in any relationship, person never try to resolve issues. Immediately talk to someone else or refer to someone else. That is the major cause of breaking of relationship nowadays. कोई झुकना नहीं चाहता, सब एक दूसरे को काट कर आगे बढ़ना चाहते हैं. There are various categories of women. Some are very strong, some are weak, some are in between. Fundamental nature of all women are to fill themselves with emotional garbage. If they are able to cross their emotions, they can reach high as much high. I think whether we are living normal life or spiritual life, everyone, whether male or female, should follow few basic principles of life, like always be honest with others, never try to earn money or achieve in wrong way, never hurt others, never talk back to anyone, always be straightforward, humble, loving and caring in every place and in every relation, always think
about our home as well as our society, city, country, as well as about whole earth, because things never go smooth forever. One day it will affect one by one everyone, whether in this incarnation or in another incarnation. So try to make beautiful and clean themselves as well as our home and our surroundings. No limits, finally our permanent place of earth. Especially women are the backbone of family, society, city, country, world and whole universe. As they are beautiful, they make surrounding environment beautiful, filled home with love and laughter, and play very important role at every stage of life. This is also mentioned by Durga Saptasati. I am reading few paragraphs of Ath Pradhanikam Rahasyam फ्रॉम श्री दुर्गा सप्तशती। ओम सप्तशती के इन तीनों रहस्यों के नारायण ऋषि अनूप छंदा तथा महाकाली, महालक्ष्मी एवं महासरस्वती देवता हैं। शास्त्रोक्त फल की प्राप्ति के लिए जप में इसका विनियोग होता है। राजा बोले, भगवान आपने चंडिका के अवतारों की कथा मुझसे कही। ब्राह्मण आप इन अवतारों की प्रधान प्रकृति का निरूपण कीजिए। द्विज श्रेष्ठ, मैं आपके चरणों में पड़ा हूँ। मुझे देवी के जिस स्वरूप की और जिस विधि से आराधना करनी है वह सब यथार्थपूर्व से बताइए। ऋषि कहते हैं, राजन यह रहस्य परम गोपनीय है, इसे किसी के कहने योग्य नहीं बतलाया गया है, किंतु तुम मेरे भक्त हो इसलिए तुमसे ना कहने योग्य मेरे पास कुछ भी नहीं है। त्रिगुणमयी परमेश्वरी महालक्ष्मी ही सबका आदि कारण है। वे ही दृश्य अदृश्य रूप से संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित हैं। राजन, वे अपनी चार भुजाओं में मातुल्लुंग, बिजौरे का पल, गदा, खेट, ढाल और एवं पान पात्र और मस्तक पर नाग, लिंग तथा योनि इन वस्तुओं को धारण करती हैं। तपाए हुए सुवर्ण के समान उनकी कांति है। तपाए हुए सुवर्ण के ही उनके भूषण हैं। उन्होंने अपने तेज से शून्य जगत को परिपूर्ण किया है। परमेश्वरी महालक्ष्मी ने संपूर्ण जगत को शून्य देखकर केवल तमोगुण रूप उपाधि के द्वारा एक अन्य उत्कृष्ट रूप धारण किया। वह रूप एक नारी के रूप में प्रकट हुआ, जिसके शरीर की कांति निखरे हुए काजल की भांति काले रंग की थी। उसका श्रेष्ठ मुख दाढ़ों से सुशोभित था, नेत्र बड़े बड़े और कमर पतली थी। उसकी चार भुजाएं ढाल, तलवार, प्याले और कटे हुए मस्तक सुशोभित थी। वह वक्ष स्थल पर कबंध की तथा मस्तक पर मुंडों की माला धारण किए हुई थी। इस प्रकार प्रकट हुए स्त्रियों में शेष तामसी देवी ने महालक्ष्मी से कहा, माता जी आपको नमस्कार है, मुझे मेरा नाम और कर्म बताइए। तब महालक्ष्मी ने स्त्रियों में शेष उस तामसी देवी से कहा, मैं तुम्हें नाम प्रदान करती हूँ और तुम्हारे जो जो कर्म है उनको भी बतलाती हूँ। महामाया, महाकाली, महामारी, शुदा, त्रषा, निंद्रा, तृष्णा, एक वीरा, कालरात्रि तथा दुरत्या, ये तुम्हारे नाम हैं जो कर्मों के द्वारा लोक में चरितार्थ होंगे। इन नामों के द्वारा तुम्हारे कर्मों को जानकर जो उनका पाठ करता है वह सुख भोगता है। राजन, महाकाली से यूं कहकर महालक्ष्मी ने अत्यंत शुद्ध सत्व गुण के द्वारा दूसरा रूप धारण किया, जो चंद्रमा के समान गौरव वर्ण था। वह श्रेष्ठ नारी अपने हाथों में अक्षमाला, अंकुश, वीणा तथा पुस्तक धारण किए हुए थी। महालक्ष्मी ने भी उसे भी नाम प्रदान किए। महाविद्या, महावाणी, भारती, वाक, सरस्वती, आर्या, ब्राह्मी, कामधेनु, वेद गर्भा और धी श्री बुद्ध की स्वामिनी, ये तुम्हारे नाम होंगे। तदंतर महालक्ष्मी ने महाकाली और महासरस्वती से कहा, देवियों तुम दोनों अपने अपने गुणों के योग स्त्री पुरुष के जोड़े उत्पन्न करो। उन दोनों से यूं कहकर महालक्ष्मी ने पहले ही स्वयं स्त्री पुरुष का एक जोड़ा उत्पन्न किया। वे दोनों हिरण्य गर्भ, निर्मल ज्ञान से संपन्न, सुंदर तथा कमल के आसन पर विराजमान थे। उनमें से एक स्त्री थी और दूसरा पुरुष। तत्पश्चात माता महालक्ष्मी ने पुरुष को ब्रह्मन, विधे, विरच तथा घाता इस प्रकार संबोधित किया और स्त्री को श्री तथा कमला, लक्ष्मी इत्यादि नामों से पुकारा। इसके बाद महाकाली और महासरस्वती ने भी एक एक जोड़ा उत्पन्न किया। इनके भी रूप नाम मैं तुम्हें बतलाता हूँ। महाकाली ने कंठ में नील चिन्ह से युक्त लाल भुजा, श्वेत शरीर और मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण करने वाले पुरुष को तथा गोरे रंग की स्त्री को जन्म दिया। वह पुरुष रुद्र, शंकर, स्थाणु, कपर्दी और त्रिलोचन के नाम से प्रसिद्ध हुआ तथा स्त्री के त्रयी विद्या, कामधेनु, भाषा, अक्षरा और स्वरा ये नाम हुए। महासरस्वती ने गोरे रंग की स्त्री और श्याम रंग के पुरुष को प्रकट किया। उन दोनों के नाम भी मैं तुम्हें बतलाता हूँ। उनमें पुरुष के नाम विष्णु, कृष्ण,
हषिकेश, वासुदेव और जनार्दन हुए तथा स्त्री उमा, गौरी, सती, चंडी, सुंदरी, सुभगा और शिवा इन नामों से प्रचुर। इस प्रकार तीनों युवतियां ही तत्काल पुरुष को प्राप्त हुई। इस बात को ज्ञान नेत्र वाले लोग ही समझ सकते हैं, दूसरे अज्ञानी जन इस रहस्य को नहीं जान सकते। राजन, महालक्ष्मी ने त्रय विद्या रूपा सरस्वती को ब्रह्मा के लिए पत्नी रूप में समर्पित किया, रुद्र को वरदायिनी गौरी और भगवान वासुदेव को लक्ष्मी दे दी। इस प्रकार सरस्वती के साथ संयुक्त होकर ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड को उत्पन्न किया और परम पराक्रमी भगवान रुद्र ने गौरी के साथ मिलकर उसका भेदन किया। राजन, उस ब्रह्मांड में प्रधान महतत्व आदि कार्य समूह पंचमहाभूतात्मक समस्त स्थावर जंगम रूप जगत की उत्पत्ति हुई। फिर लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु ने जगत का पालन पोषण किया और प्रलय काल में गौरी के साथ महेश्वर ने संपूर्ण जगत का संहार किया। आई एम रीडिंग फ्यू पैराग्राफ्स ऑफ फर्स्ट चैप्टर ऑफ दुर्गा सप्तशती। राजा ने पूछा, भगवान जिसे आप महामाया कहते हैं वे देवी कौन है? ब्रह्मन, उनका आविर्भाव कैसे हुआ तथा उनके चरित्र कौन कौन है? ब्रह्मवेत्ताओं में शेष महेश्वर उन देवी का जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो और जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ हो वह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, राजन वास्तव में तो वे देवी नित्य स्वरूपा ही हैं, संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है और उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है, तथापि उनका प्रकट अनेक प्रकार से होता है, वह मुझसे सुनो। यद्यपि वे नित्य और अजन्मा हैं, तथापि जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती हैं। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एकारण में निमग्न हो रहा था और सबके प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग की शैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय ले सो रहे थे, उस समय उनके कानों के मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए जो मधु और कैटभ के नाम से विख्यात थे। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया और भगवान को सोया हुआ देखा, तब एकाग्रचित होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का स्तवन आरंभ किया, जो इस विश्व की अधीश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तथा तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है। उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा, तुम ही वशिष्ठकार हो, स्वर भी तुम्हारे स्वरूप हैं, तुम ही जीवनदायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में आकार, उकार, मकार इन तीन मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो तथा इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्ध मात्रा है जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता वह भी तुम ही हो। देवी तुम ही संध्या, सावित्री तथा परम जननी हो। देवी तुम ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो, तुमसे ही जगत की सृष्टि होती है, तुम ही से इसका पालन होता है, सदा तुम ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जगन्मयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम षष्ठ रूपा हो, पालन काल में स्थित रूपा हो तथा कल्पांत के समय संहार रूप धारण करने वाली हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेघा, महास्मृति, महामोह रूपा, महादेवी, महासुरी हो। तुम ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर काल रात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि भी तुम ही हो। तुम ही श्री, तुम ही ईश्वरी, तुम ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड्ग धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भुषुंडी और परुग ये भी तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य, सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ हैं उन सब की अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदरी हो। पर अपर सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। सर्वस्वरूपे देवी, कहीं भी सत असत रूप जो कुछ वस्तुएं हैं और उन सब की जो शक्ति वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं उन भगवान को भी जब तुमने निंद्रा के अधीन कर दिया है तब तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है? मुझको, भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है? देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभावों से ही प्रशंसित हो। ये जो दोनों दुर्दृश असुर और मधु कैटभ है इनको मोह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। थैंक यू वेरी मच।
मनुस्मृति में स्पष्ट उल्लेख है कि जहाँ स्त्री का सम्मान होता है वहाँ देवता रमण करते हैं। वैसे तो नारी को विश्व भर में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, किंतु भारतीय संस्कृति एवं परंपरा में देखें तो स्त्री का विशेष स्थान सदियों से रहा है। फिर भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर वर्तमान में यदि खुले मन से आकलन करें तो पाते हैं कि महिलाओं को मिले सम्मान के उपरांत भी ये दो भागों में विभक्त हैं। एक तरफ से दबी हुई, कुचली हुई, अशिक्षित और पिछड़ी हुई महिलाएं हैं, तो दूसरी तरफ प्रगति पथ पर अग्रसर महिलाएं, कई मामलों में तो पुरुषों से भी आगे नई ऊंचाइयों को छूती हुई महिलाएं हैं। तो मैं सब महिलाओं से यही कहूँगी कि जो मैं अपना अभी एक कोटेशन बोलने जा रही हूँ, आप लोग भी इसको अपने से बोलिए, अपने आप से कहें कि मैं कर सकती हूँ, मैं करूँगी, मैं कुछ बनकर ही रहूँगी, मैं प्रण लेती हूँ। मैं फिर से सभी को इस दिन की शुभकामनाएं देती हूँ। International Women's Day is a global day celebrating the social, economic, cultural, and political achievements of women. The day is celebrated globally, highlighting the struggles and achievements of women. The day also marked a call to action for accelerating gender parity. Internationally, purple is taken as a color to symbolize Women's Day. Today, we celebrate every woman on the planet. They bring so much love and beauty into our world just by being in it, and it makes everyone a little bit happier. Women's Day is an amazing opportunity to remind ourselves that fighting for our ladies is very important thing to do. Support every woman around you and respect everything they do because they deserve it. Every life begins with a woman. We tend to forget about that. On this day, let's thank every woman in our life and show some love. Our world would mean nothing without women. Their courage that exists in perfect harmony with amazing tenderness saves our world every day. Happy Women's Day to our mothers, daughters, and sisters. A graceful woman gets strength from troubles, smiles when distressed, and grows even stronger with prayers and hope. Wishing you a very happy Women's Day. So be grateful because today is your day. A strong woman is one who feels deeply and loves fiercely. Her tears flow as abundantly as her laughter. A strong woman is both soft and powerful. She is both practical and spiritual. A strong woman loves, forgives, walks away, lets go, tries again, and perseveres, no matter what life is at her. For me, an inspiring woman is simply a woman who can fill someone with the desire or urge to do something worthwhile, something that creates a better world. Perhaps a woman who lives her life free from definitions, constraints, and attachment to generally accepted ideals and stereotypes of beauty and success.